सो मोर ट्रबल फॉर द वर्ल्ड, फिर से और विपत्तियां भर गई. President Donald Trump has announced imposition, but actual levy now of the tariffs on Canada and Mexico with effect from today. We were expecting at least some relief, but no relief. In fact, Canada has now gone and imposed retaliatory tariffs on United States. So which means now there's a full trade war, and no wonder you saw the Dow Jones slip. At one point of time, it was down 920 points. I was watching the entire trading. It was really sad. Particularly over the last 1.25 hours of trading, I know exactly the timings when this. I had drawn a graph and kept which are the likely timings, and it was exactly falling in those timings. That was United States, the Wall Street trading. As far as the market's concerned, and जहाँ तक कि भारत का सवाल है, इस वक्त जो है गिफ्ट निफ्टी फिर से 150 से भी ज़्यादा दिखा रहा है, डाउन एट अराउंड द ओपन. और दिन के सेशन में मेरे ख्याल से जब अब 1:45 के करीब जा रहे हैं, तो और कुछ और भी बढ़ सकती है सेलिंग उस वक्त. 1:10 1:15 के बीच में. फिर मेरे ख्याल से दिन के समय भी 2:30 के बाद और लास्ट में कुछ आधा एक घंटा और सेलिंग की संभावना है. फ्रेंड्स, at as some of the suggestions, you can sell Paytm at 729 for a target of 700. You may keep 740 as a stop loss. You may also sell Poonawalla FinCorp at 268 for target of 259, and you may keep 273 as a stop loss. You may sell IFL Finance at 293 for a target of 281 and keep 295 as a stop loss. And there is good news coming in from a couple of sectors, and there would have been very good buy recommendations on a normal day, but I will resist from giving them just because, like IX, they have repeated a good jump in their trading volume, so you can look at it on the buy side, but the day is looking to be difficult, particularly the afternoon session. So one would want to keep quiet on this session. Otherwise, it's good news from the IX side. And besides, you also have IndiGrid. That also is good. ASK Automotive has entered into a good collaboration with a Japanese company for cast wheels, and that's a very nice one. So at 340, you may consider it on the buy side for a target of 350, keeping 332 as a stop loss. But we will also look at some of the sell recommendations, which today again are more than the buy recommendations. And do join our. This is a tough situation for the market. I hope that the government says that they are on a wait and watch mode. Well, all credit to Yogi ji for a successful conclusion of the Mahakumbh, to Modi ji, to the Amit Shah ji and all. But I would now, I'm writing to them as well, request little bit of attention. Investors' wealth. See, Nirmala Sitharaman ji did a lot to put some money in the hands of the consumer. But if the markets, the amount that they are losing by the day, if this increases, then what happens is that will more than compensate for that income tax benefit. I hope they are realizing that, because there's what is called a wealth effect होता है. अगर आपका शेयर बाजार में नुकसान बढ़ते जाएगा, और हालांकि मुझे कुछ अच्छे भी दिन दिख रहे हैं, लेकिन मान भी लिया जाए कि वो अच्छे दिन आ भी जाते हैं. आज का दिन का सेशन तो नहीं दिख रहा, लेकिन एनीवे. और आज शुरुआत भी गिफ्ट निफ्टी है, तो फिर न्यू न्यूज़ आ गई कि कनाडा ने भी इम्पोज कर दिया. चलो कोई बात नहीं, हमने अपना तो फोरकास्ट पूरे ग्रुप्स में दे दिया. मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है ऑलरेडी, और लगभग वही है जो मैंने डाला है, उसी हिसाब से ही चल रहा है. मार्केट में कुछ में ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है. और वैसे ही जो मैंने कल अपने ग्रुप में डाल के रखा था फोरकास्ट, और पूरा हफ्ते का भी दिया था, उस हिसाब से ही चल रहा है.
तो फिर भी देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेल्थ इफेक्ट। अगर कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे ऐसे जा रहे हैं तो वो अपना खर्चा करना भी कम कर देंगे, ठीक है। और कम खर्चेंगे खर्चा, तो उससे जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना एनविसाज किया था कि मैं कटौती करूंगी अपने इनकम टैक्स में, तो लोगों के हाथ में कुछ पैसे बढ़ेंगे, जो पैसे बढ़ेंगे तो वो पैसे से जाके कुछ खरीदेंगे, तो वो पूरा जो है उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए फिर ये कटौती और ये सब जो टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ा के भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब कई लोग कह रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस उसकी वजह से ये सब घटा है। देखिए, मैं उस वक्त ट्रैवलिंग में था जब बजट निर्मला जी ने अनाउंस किया था, पर मैंने वहाँ से भी कहा था कि जो इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है लॉन्ग टर्म ये एनआरआईज के ऊपर टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर, ये बिल्कुल गलत था। ये मौसम नहीं था और ये ज़रूरत भी नहीं थी। हर वक्त देखिए ये सब टैक्स बढ़ाते रहना, इक्वलाइज करना, इसके उसकर, ये सब जो है ना, ये आपने अगर जो आने वाला है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं तभी आप ये सब करते हो। एनीवे, उन्हें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ज़्यादा है उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। वो तो सितंबर अक्टूबर या उससे पहले भी ये लग चुका था, तब तो मार्केट बढ़ रहा था। तो ये बहाने भी बन जाते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आके थोड़ा सा घटा देगा टैक्स, तो या निकाल भी देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खास करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो 3 साल से ज़्यादा है और जो सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अब बुद्धिमान है सीतारमण जी और उनका ये जो सारा ग्रुप है, इतना अच्छा महाकुंभ उन्होंने किया। अब थोड़ा यहाँ भी अपनी नज़र ज़रूर, कृपा की दृष्टि ज़रूर घुमाएंगे। मुझे लगता है शेयर बाज़ार में लोग सफ़र कर रहे हैं और इनकम टैक्स का लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था जब ये हुंडई मोटर की इतनी बड़ी इशू आ रही थी, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा था ये लोग एक के पीछे एक दे आर ब्रिंगिंग आउट आईपीओज, दिस विल लीड टू अ फ्लड ऑफ मनी आउट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इनटू द प्राइमरी। वही हुआ। ये मैंने सुनील केवल रमानी की बुद्धिमानी है, ये आप जाके इतिहास को स्टडी करिए। अनफॉर्चुनेटली टीवी पे कोई आ नहीं रहा था, एक आईपीओ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सेबी अप्रूवल देते जा रही है। क्यों अप्रूवल दे रहे हो? आपको समझना चाहिए कि इतने सारे आईपीओ अगर साथ में आ रहे हैं तो ये पैसा सकआउट कर देगा, सेकेंडरी मार्केट से निकल के सब प्राइमरी में जाएगा। हुआ कि नहीं? वैसे फिर से हुआ है और उससे आप देखेंगे सेलिंग बढ़ गई। जैसे हुंडई का इतना बड़ा है, अब सोच समझ के तो करिए भाई, हर चीज को थोड़ा थोड़ा। एक हफ्ते में ये आईपीओ, फिर दूसरे हफ्ते दबा के एक दिन में आईपीओ आ रहे हैं, 3 दिन 4। मैं तो कहूं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज दिस आईपीओ, द वे दे हैव कम आउट एंड दे वर अप्रूव्ड वन आफ्टर द अदर। एनीवे, अब जो होनी है तो होनी रहती है। इतने सारे जरूरत क्या थी आपको, एक के पीछे एक। और जो जिन्होंने आईपीओ लेके उनको तो पैसे मिल गए, बच गया, फंस गया बेचारा छोटा इन्वेस्टर। दिन के समय कुछ मैंने टाइमिंग दिया है, फिर से बढ़ सकती है। कुछ स्टॉक्स भी दिए हैं जो आप सेल साइड के हैं ज़्यादा, प्लस साइड के आज के लिए कम है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में रिबाउंड आने की क्षमता रखता है। वो मैं रिजर्व करता हूं अपना, आज के लिए नहीं। आज जाके सुबह मेरा सुनते हैं, फिर जाके 9:15 को कॉल ले लेते हैं। मैंने आज की बात नहीं की, टाइम टू टाइम आएगा, बाद में बताएंगे। जरूर ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम प्लस, जो 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में रहता है। कब आएंगे रिबाउंड वो भी उसमें बता रहे हैं, तो इसको मिस मत करिएगा प्रीमियम प्लस को। और अच्छे स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस भी हम दे रहे हैं। इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ गॉट ए सबसे वाइडेस्ट ऑप्शंस के जो असॉर्टमेंट है वो प्रीमियम प्लस में रहता है। संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।